So the first chapter is the fundamental of partnership. It is the most important chapter. So for the partnership section is concerned, we'll have to understand each and every aspect of this chapter, and we'll have to practice that. It is a very simple chapter, but needs a lot of practice. Needs a lot of practice, and each and every point must be duly taken care of. So I'm starting this chapter step by step. Step by step. I'm not in any hurry. The reason is first two chapters of the partnership are very important. The first one is the fundamental of partnership, and the second one is admission of the partnership, because these two chapters covers at least 25% of the board syllabus. Usually every year these two chapters are asked. And more important, what is more important is, if these two chapters are solid, rest of your partnership will definitely be solid. And if these two chapters are weak, it's very hard to teach the rest of the chapters. So please understand this chapter step by step. Number one. First of all, I'm dealing with profit and loss appropriation account. Understand a few facts about this chapter. About profit and loss appropriation account is prepared to show the distribution of the net profit among the partners by way of interest on capital, salary, and transfer to reserve. What does it mean? Profit and loss account is an account where we show how the net profit that is being earned by a partnership firm will be apportioned among the partners by way of interest, salary, and reserve. Means फर्म ने जो नेट प्रॉफिट कमाया है उसे पार्टनर्स में कैसे बांटा जाएगा, उसको कैसे दिखाया जाएगा, इसके लिए अकाउंट दैट इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. पॉइंट 2. Appropriation of net profit among the partner is dependent upon the provisions contained in Section 13 of Partnership Act 1932. All the relevant aspect of this chapter, of this particular segment that is called profit and loss appropriation account, has been contained in Section 13 of Partnership Act 1932. मतलब यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझना है तो आपको सेक्शन 13 के प्रोविजंस की नॉलेज होनी चाहिए. क्वेश्चन उठता है कि क्या है ये प्रोविजंस, तो देखिएगा. पहली बात इस सेक्शन के बारे में जानिएगा. Section 13 of Partnership Act 1932 states where there is neither partnership deed nor express agreement or deed is there, but it is silent with regard to certain point. Is it clear? Then this section will operate, and all these matters will be solved with the help of this section 13. What does it mean? यदि पार्टनरशिप डीड यदि फर्म ने बनाई है तो कोई चिंता की बात नहीं, हर चीज डीड के अकॉर्डिंगली ही होगी. लेकिन यदि डीड नहीं बनाई है या डीड में कोई प्रोविजन लिखना भूल गए हैं, सो हाउ दीज इश्यूज विल बी रिजॉल्व्ड? आंसर इज सेक्शन 13. फिर समझ लीजिएगा, एक एस्पेक्ट है डीड बना लेना. डीड बना लिया आपने, यू कैन वर्क एज पर योर डीड. Is it clear? Whatever is given in that, you can work accordingly as long as it is legal. But so यदि लीड नहीं है तो फिर क्या करेंगे? यदि लीड नहीं है तो आपको सेक्शन 13 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सहारा लेना पड़ेगा. क्या कहता है ये सेक्शन? याद रखिएगा, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं. जो जिन क्वेश्चंस को आप कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सो यही क्वेश्चन इसी एरिया से पूछे जाते हैं. क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, is it clear? Section 13 will operate, and Section 13 says, number 1,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज विल बी इक्वल। यदि आपने डीड में किसी रेशियो का जिक्र नहीं किया या डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज इक्वल होंगे। नंबर 2, यदि आपने डीड में किसी भी तरीके की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात नहीं की है, इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा यदि डीड में आपने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया या डीड बनाई नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज। पॉइंट नंबर 3, यदि डीड नहीं है या डीड में आपने कोई जिक्र नहीं किया है तो याद रखिएगा नो बोनस कमीशन एंड रेम्युनरेशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। और यदि आपने डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई जिक्र नहीं किया है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इज इट क्लियर? यदि आपने डीड में किसी भी तरीके का पॉइंट कोई जिक्र नहीं किया है, कोई बात डिस्कस नहीं की है, इज इट क्लियर? इफ एनी पार्टनर हैज गिवन एनी लोन और एडवांस टू द फर्म, ही और शी विल बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसका मतलब सेक्शन 13 अप्लाई व्हेन आइदर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और certain points are omitted to be recorded in the partnership deed. What are these points? Listen it carefully. Number 1, deed नहीं है या deed में कोई बात का जिक्र नहीं है और वो बात आ जाती है तो point number 1, profit sharing ratios will be equal. Number 2, no interest on capital will be allowed, no interest on drawings will be charged. Number 3, no bonus commission and remuneration will be allowed to any partner. And the fourth one is, if any partner has given any loan or advance to the firm, he or she will be allowed interest at the rate of 6%. सोचो, समझो और ध्यान दो क्या होता है यदि आपने डीड बना ली है तो सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट कहता है आई एम सिटिंग आउटसाइड, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन योर लाइफ। बट यदि आपने डीड नहीं बनाई और कुछ पॉइंट्स को रखना भूल गए हो तो याद रखना पार्टनर सिर्फ 2 ही चीजें दी जाएंगी आपको। नंबर 1 प्रॉफिट, वो भी इक्वल और नंबर 2 लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम। सो मैं एक बार फिर इसको बता रहा हूं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरेटिकल इज कंसर्न। If we set aside numerical aspect, number 1, these 4 points are applicable in the absence of the partnership deed or certain points have been left out while preparing the partnership deed. What are these points? Again, number 1, profit sharing ratios will be equal. Number 2, no interest on capital will be allowed, no interest on drawings will be charged. Number 3, no bonus commission remuneration will be allowed to any partner. Number 4, if any partner has given any loan or advance to the firm will be allowed interest. Listen carefully at the rate of 6% per annum. And please listen, दिया जाएगा जहां पर मस्ट लग जाए, जरूरी हो जाए। याद रखिएगा हम लोग अकाउंट्स में ऐसी चीजों को चार्ज कहते हैं, ध्यान नहीं दिया तो आपसे समझ लीजिएगा जो चीजें हमारे यहाँ मस्ट होती हैं वी कॉल देम चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो हियर इज द फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट और दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा नेट प्रॉफिट होता क्या है? नेट प्रॉफिट होता है सारे कंपलसरी खर्चों के बाद यदि आपने मैनेजर्स को कोई कमीशन और सैलरी नहीं दी है तो याद रखिएगा मैनेजर घर का नहीं है, इज एन आउटसाइडर। तो नेट प्रॉफिट तभी आएगा जब उसका कमीशन आपने ऑलरेडी क्या कर दिया, माइनस। और याद रखिएगा नेट प्रॉफिट वो होता है जो पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट देने के बाद होता है। एंड आई वुड लव टू ऐड वन मोर थिंग व्हिच आई विल कवर लेटर ऑन आल्सो। नेट प्रॉफिट वो होता है जो पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट देने के बाद और एक और चीज देने के बाद होता है, दैट इज रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस। सो द फर्स्ट थिंग जिससे एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है वो वी कॉल इट नेट प्रॉफिट। एंड प्लीज टू रिमेंबर नेट प्रॉफिट comes after manager's salary and commission, after interest on loan, and one more thing I'm adding here, that is rent to a partner.
फर्म को नेट प्रॉफिट के अलावा एक इनकम है जो पार्टनर से होती है, what do we call it? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। What do we call it? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यदि पार्टनर्स ने बिजनेस से कोई मनी ड्रॉ किया है तो फर्म चाहे तो उससे क्या ले सकती है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब जो भी पार्टनर्स को दिया जाता है वी कॉल इट एप्रोप्रिएशन। वी कॉल इट एप्रोप्रिएशन। क्या है? पार्टनर्स को एक कैपिटल पर इंटरेस्ट देना इज एन एप्रोप्रिएशन। पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना इज एन एप्रोप्रिएशन। रिजर्व बनाना इज एन एप्रोप्रिएशन। और बाद में जो बचता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंसिंग प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। सिमिलरली एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट बचता है व्हाट डू वी कॉल इट? डिविजिबल प्रॉफिट। व्हाट डू वी कॉल इट? Divisible profit, and this divisible profit will be apportioned among the partner as per the ratios. As per the ratios. If the ratios have been agreed upon, well and good. If no ratios have been agreed upon, अभी भी मैंने आपको बताया था रेशियो तय है तो ठीक है, उसी से बांट दो, नहीं है तो फिर इक्वल बांटा जाएगा। तो बताइए क्या दो चीजें हैं जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होती हैं? नंबर वन नेट प्रॉफिट। कैसा नेट प्रॉफिट? मैनेजर सैलरी के बाद, मैनेजर कमीशन के बाद, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट ऑफ प्रोमाइसेस देने के बाद, और एक इनकम है जो क्रेडिट होती है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी अपनी जगह नहीं बदलता। Whenever it is there in the question, it will always be in the credit side of appropriation account, so its position is absolutely fixed. So barring a few exception, only two things are usually you'll come across that will be shown in the credit side of appropriation account, and जो डेबिट साइड में दिखाया जाता है ये तीन इंफॉर्मेशन दिखाई जाती हैं। नंबर वन इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हिच इज अलाउड टू पार्टनर। नंबर टू सैलरी कमीशन और एनी बोनस इट इज अलाउड टू एनी पार्टनर। एनी रिजर्व created and balancing profit is distributed either in the agreed ratio, and if there is no agreement it will be distributed equally. It will be distributed equally. So please एक बार और याद करिए because अगले भी सवाल सिर्फ इन 6 बातों पर डिपेंड है। नंबर वन profit and loss account, so profit and loss appropriation accounts with the net profit. How does it comes? Is it clear? Number one, ये चार चीजों को माइनस करने के बाद आता है। What are these four things? Number one, मैनेजर्स को देने के बाद because he is an outsider, मैनेजर को सैलरी या कमीशन देने के बाद because he is an outsider, लोन पर इंटरेस्ट देने के बाद क्योंकि ये चार्ज है, क्योंकि ये मस्ट है, और पार्टनर को रेंट देने के बाद क्योंकि रेंट देना भी एप्रोप्रिएशन नहीं है, इट इज अ चार्ज, इट इज अ चार्ज। तो चार चीजों को बात करने के बाद आया प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इट विल बी क्रेडिटेड, और तीन चीजें डेबिट होंगी। नंबर वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन और समटाइम्स बोनस। Any reserve created will be debited here, and whatever is there will be distributed in old partner in the agreed ratio, or if no agreement is there, it will be distributed in equal proportion. Now, कुछ और बातें एक समझिए इस अकाउंट के बारे में। This account means profit and loss appropriation account is prepared to show the distribution of profit among the partners. So ये partners में profit बांटने के लिए बनाया जाता है। क्लास 11th में इस अकाउंट से आपका कभी पाला नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि क्लास 11th में जितने भी चैप्टर्स थे वहां पर एक ही ओनर होता था और एक में एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। एप्रोप्रिएशन तब होता है जब एक से ज्यादा हो। This account is prepared if the profit is there. This account is prepared if the profit is there. In the event of loss, there cannot be any appropriation, and this account is not required. But इसका भी एक exception है। इसका भी एक क्या है? Exception है। वो बाद में कवर करेंगे। I'm just right now talking about the basic point. तो याद रखना ये अकाउंट एप्रोप्रिएशन है तो यूजुअली तभी बनता है when there is a profit. When there is a profit, partners will be allowed interest on capital. याद रखना मैंने पार्टनर्स को दी जाने वाली चीजों को किस नाम से पुकारा है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है होगा तो पूरा देंगे, कम है कम देंगे, नहीं है नहीं देंगे, नहीं है नहीं देंगे। So
This account is prepared. This account is prepared if profit is there. In the event of loss, there cannot be any appropriation and this account is not required. Partners will be allowed interest on capital, salary, commission only up to the extent of profit available. मतलब जो भी चीजें पार्टनर्स को इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन के तौर पर दी जाएंगी, याद रखना उनकी लिमिट है, वो लिमिट क्या है? प्रॉफिट। मतलब यदि प्रॉफिट सफिशिएंट है तो हम तीनों चीजें पूरी देंगे, यदि प्रॉफिट कम है तो प्रोपोर्शनेटली अमाउंट कम हो जाएगा, और यदि प्रॉफिट नहीं है तो फॉरगेट अबाउट दीस थ्री थिंग्स। इज इट क्लियर? पार्टनर्स का इन पर कोई हक नहीं होगा और ये तीनों चीजें नहीं दी जाएंगी। पॉइंट नंबर 4, नेट प्रॉफिट दैट इज शोन इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने अभी कहा था आपको, वही ये पॉइंट है कि जो नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है वो सारे कंपलसरी खर्चों के बाद, इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद और पार्टनर को रेंट पर प्रोमाइसेस पर दिए जाने वाले रेंट के बाद। क्या तीन चीजें बोली मैंने? नंबर 1 किसी आउटसाइडर्स के पेमेंट के बाद, नंबर 2 पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट देने के बाद, और कोई लेना है तो लेने के बाद, और यदि फर्म ने पार्टनर से कोई प्रोमाइसेस वगैरह रेंट पे लिया तो उसका रेंट देने के बाद। सो दिस पॉइंट नंबर 4 कंटेन्स दिस एस्पेक्ट। पॉइंट नंबर 5, फॉरेन पेमेंट्स दो मेड टू अ पार्टनर इज स्टिल रिगार्डेड एज चार्ज, इट इज नॉट चेंज, इट इज रिगार्डेड एज चार्ज। मैंने अभी भी आपको बताया, जस्ट गो थ्रू दैट, बट यू सी कुछ ऐसे पेमेंट्स हैं, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जो भी पार्टनर्स को दिया जाता है इट इज ऑल एप्रोप्रिएशन, बट आई हैव सेड दैट दो ऐसी चीजें भी हैं, दी पार्टनर्स को जाती हैं बट उन्हें चार्ज माना जाता है, उन्हें मस्ट माना जाता है और उन्हें कभी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं। और वो दो चीजें क्या हैं? बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इफ यू लुक एट द पेपर ऑफ 2018 एंड यू विल सी दैट कि ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी पूछा गया कि कोई ऐसे दो एक्सपेंसेस के नाम बताइए जो दिए पार्टनर्स को जाते हैं बट माने चार्ज जाते हैं, मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते हैं। बहुत सिंपल आंसर है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट ऑफ द प्रेमिसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट ऑफ द प्रेमिसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट ऑफ द प्रेमिसेस। फिर धीरे से बोल रहा हूं, name any two expenses though they are allowed to a partners is still regarded as charges. Answer is interest on loan and rent of the premises, interest on loan and rent of the premises। मेरे साथ साथ बोलो, कौन कौन से दो खर्चे हैं पार्टनर्स को देने के बाद भी उन्हें चार्ज माना जाता है, एप्रोप्रिएशन में नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है? नाम बताइए, तो आप प्यार से याद करिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, घर का किराया, इंटरेस्ट ऑन लोन, घर का किराया, इंटरेस्ट ऑन लोन इन द रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस। 6.1 If one of the partner is allowed interest on capital and other partner is allowed salary and profit falls short, भाई माना एक पार्टनर से तो कह दिया भाई हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और दूसरे से कहा इंटरेस्ट नहीं सैलरी देंगे आपको, और ऐसे में यदि प्रॉफिट कम पड़ जाए, लुक एट दिस एग्जांपल, तो क्या करेंगे? इफ वन ऑफ द पार्टनर इज अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अदर पार्टनर इज अलाउड सैलरी एंड प्रॉफिट फॉल्स शॉर्ट, देन दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ अमाउंट पेबल टू देम। मतलब उनको जितना देना था उसका रेशियो निकालो और उस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट टिल द टाइम वी आर नॉट डिस्कसिंग सम एग्जांपल्स। सो मैं एक एग्जांपल नॉर्मल डिस्कस करूंगा और एक बोर्ड का डिस्कस करूंगा। सो आप रीड For example, partner A is paying interest on capital amounting to 10,000। बताइए भैया A को कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट देना है? 10,000। और B को क्या देना है? सैलरी कितनी? 5,000। मींस दोनों को मिलाकर कितना देना है? 15,000। बट सर जी प्रॉफिट है कितना? 6,000। एप्रोप्रिएशन 6,000 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो बताइए 6,000 कैसे बांटा जाएगा? क्या A को देकर B को भगा दिया जाए या B को देकर जो बचे को A को दे दिया जाए? आंसर है दोनों ही गलत हैं। तो क्या किया जाए? 6,000 will be allowed to partner
एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इन द रेशियो ऑफ अमाउंट पेबल टू देम। तो बताओ इसे 10,000 देना और इसे 5,000, बताइए दोनों में क्या रेशियो है? 2:1। तो ये जो 6,000 है ये 2:1 में बांटा जाएगा। मतलब जब हम 6,000 को 2:1 में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? 4,000 ए को मिलेगा और 2,000 बी को मिलेगा। याद रखना 4,000 ए को मिलेगा एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 2,000 बी को मिलेगा एज अ सैलरी। सो प्लीज फिर सुन लीजिएगा। आपको in this question A and B are to be given 15,000, 10,000 is the interest on capital that is payable to A and 5,000 salary that is payable to B, but unfortunately profit is only 6,000, so we cannot give more than 6,000. So how will get to that? So we'll ask A, तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? We'll say 10,000. We'll ask B, तुमको कितना मिल रहा था? 5,000. दोनों को कितना मिल रहा था? सर 10 और 5 that is 2:1। तो हम उनको 6,000 रुपए बांटेंगे 2:1 में। किस रेशियो में? 2:1। और 4,000 जो होगा वो ए का इंटरेस्ट और 2,000 बी की सैलरी होगी। आइए अभी बोर्ड का सवाल भी करते हैं। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमेशा प्लीज क्वेश्चन को कई बार पढ़िए, बहुत कम प्रैक्टिस से अकाउंट सॉलिड हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन? X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. X has contributed 12 lakh as his capital and Y is an active partner. The partnership deed provides for interest on capital at the rate of 12% and salary at the rate of 9,000. So दिमाग में प्रोसेसिंग करते रहिए कि बताइए इसकी कैपिटल कितनी है? 12 लाख का 12% कितना होगा? देखिए रजिस्टर लेके बैठिएगा। कितना एक्स को कितना मिलना है? 1,44,000, 1,44,000 और वाई को सैलरी कितनी मिली है? 9,000। कितनी मिली है? 9,000। तो बताइए 12 9 जा कितना होता है? 1,08,000, 1,08,000। प्लीज रजिस्टर लेके बैठिएगा, कंफर्म होते रहेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। याद रखिएगा एग्जाम मार्च में होना है एंड आराम से हर चीज कवर हो जाएगी। बस आप जो करते जाइए उसको ढीला मत करिएगा, उसे प्लीज भूलिए नहीं, उसे बहुत केयर से पढ़िएगा। सो बताइए हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल टू ए? दैट इज 1,44,000। आपने रजिस्टर में लिख लिया होगा। और हाउ मच पेबल टू वाई इज 12 into 9 is 1,08,000, 1,08,000। तो यदि आप देखें 1,44,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और 1,08,000 सैलरी देनी है। यदि मैं दोनों का टोटल करूं तो ये कितना होता है? कितना करिए? 1,44,000 प्लस 1,08,000 कितना हुआ? 2,52,000, 2,52,000। इसका मतलब इन दोनों को पूरा यदि हमें देना है तो हमारे पास प्रॉफिट कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 2,52,000। बट वी कांट हेल्प इट, प्रॉफिट इज ओनली 1,05,000 और इससे ज्यादा फर्म नहीं देगी। तो सीख लीजिए पैसा कैसे बांटा जाएगा। सो सबसे पहले आप रेशियो कैलकुलेट करिए। 1,44,000 1,08,000 का, 1,44,000 एंड 1,08,000 का। सो 12% of 12 lakh is 1,44,000 and 9,000 to 12 is 1,08,000. So the total is 2,52,000. अब नेक्स्ट इसका रेशियो निकालिए 1,44,000 and 1,08,000। आप साफ देख रहे हैं दोनों किससे कट रहे हैं? 36 से। 36 3 जा एंड 36 4 जा। तो बताइए दोनों के बीच में क्या रेशियो आ रहे हैं? दोनों के बीच में क्या रेशियो आ रहे हैं? और दोनों के बीच में जो रेशियो आ रहे हैं दैट इज 4:3। दैट इज 4:3। 1,44,000 और 1,08,000 के बीच में जो रेशियो दैट इज कॉल्ड 4:3। सो बताइए फर्म की जो ये लायबिलिटी है जो दोनों को देना है उसका रेशियो क्या है? दैट इज 4:3। तो हम क्या करेंगे? 1,05,000 को किस रेशियो में बांट देंगे? 1,05,000 को किस रेशियो में बांट देंगे? दैट इज 4:3। सो x will get 60,000, y will get 45,000, 45,000। सो ये दो सवाल मैंने किए, एक नॉर्मल था और एक ये बोर्ड का है। सो प्लीज याद रखिएगा दिस क्वेश्चन इज आल्सो गिवन इन ऑल बुक्स आल्सो।
वही बातें repeatedly are if partners are to be allowed interest on capital but profit falls short, then amount available will be distributed among the partner in the capital ratio. Will be allowed in the partner in the capital ratio. माना x और y को हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, लेकिन यदि प्रॉफिट कम पड़ जाए तो हम कितना देंगे? हम दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट कितना उनकी कैपिटल के रेशियो में देंगे। तो सिंपल बात में बात बता दूं, इन सारे पॉइंट्स को आप गो थ्रू दैट। So if the partners are to be allowed interest on capital but profit falls short, then amount available will be distributed among the partner in the capital ratio. So please highlight it. Please highlight it. It will be in the capital ratio. Partners को in capital पर interest देना है और profit कम पड़ जाए तो जो भी profit partners में बांटा जाएगा, it will always be in the capital ratio. Point number 8. If partners' current account are given, interest will be charged from those partners having debit balance and will be credited in appropriation account, and interest will be allowed to those partners having credit balance. ये point बहुत आगे particular सवाल में आएगा, फिर भी मैं बोलता हूँ कभी-कभी partners के current account के balances debit balances होंगे। आप सभी लोग you have already gone through the class 11 to understand कि debit balance means नेगेटिव बैलेंस, मतलब पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस उनके करंट अकाउंट में पैसा क्या है? नेगेटिव है। तो याद रखना कभी भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट यदि डेबिट होंगे, उनके बैलेंसेस क्या होंगे? डेबिट होंगे, तो याद रखना फर्म उनसे इंटरेस्ट लेगी और ये इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। और यदि पार्टनर्स के करंट अकाउंट यदि क्रेडिट है, आप जानते हैं कि कैपिटल और करंट अकाउंट का क्रेडिट होना मींस पॉजिटिव होना, और यदि उनका बैलेंस क्रेडिट है तो उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा और ये चीज डेबिट होगी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगी? डेबिट। सो प्लीज इन चीजों को याद रखिएगा कि यदि करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट होंगे तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यदि करंट अकाउंट के बैलेंसेस क्रेडिट होंगे तो इंटरेस्ट डेबिट होगा। इसका मतलब इंटरेस्ट और कैपिटल के बैलेंसेस में बिल्कुल ऑपोजिट रिलेशनशिप है। सो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ करंट अकाउंट बैलेंसेस आर क्रेडिटेड, please do remember interest on these current account balances will be debited, or if current account balances are debited then interest on these current account balances will be credited in appropriation account. जब सवाल आएगा so I highlight the point number 8. याद रखना ये point number 8 जब आएगा मैं इसको फिर दोबारा डिस्कस करूंगा, because अभी तो आप ये नहीं जानते कि what is current account. So when we'll discuss current account I'll emphasize it more. Point number 9. Read carefully. If question contains that interest on current account is to be allowed, यदि आप क्वेश्चन पार्टनरशिप जो भी क्वेश्चन पार्टनरशिप के they are just dependent upon the agreement among the partners, इसलिए पार्टनरशिप के सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि कहीं सवाल में ये लिखा है कि करंट अकाउंट पर सिर्फ इंटरेस्ट देना है तो सिर्फ देंगे, लेंगे नहीं। फिर याद रखिएगा, रीड केयरफुली, क्वेश्चन कंटेन दैट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इज टू बी अलाउड ओनली, देन इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट विल बी अलाउड एंड विल नॉट बी चार्ज। तो यदि बुक में लिखा है कि पार्टनर्स को करंट अकाउंट पर सिर्फ बैलेंस देना है तो याद रखना ये छोटा सा पॉइंट, इज इट क्लियर? कौन सा पॉइंट? ओनली, इज इट क्लियर? इज अ वेरी सिग्निफिकेंट। लोग इन्हें तेजी से पढ़ने में स्किप कर देते, याद रखना। तो यदि ओनली वर्ड ना लिखा होता तो याद रखना करंट अकाउंट के बैलेंसेस यदि डेबिट हैं तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, और यदि करंट अकाउंट के बैलेंसेस क्रेडिट हैं तो इंटरेस्ट डेबिट होगा। लेकिन यदि सवाल में लिख दिया कि भैया सिर्फ इंटरेस्ट अलाउ करना है, चार्ज नहीं करना है, अलाउ करना मीन देना है, लेना नहीं है, तो सिर्फ प्लीज दीजिएगा, उससे लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नाउ ये चैप्टर पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर अकाउंट पे डिपेंड करता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स दो तरीके से बनाए जाते हैं। पहला सिस्टम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इन द नेक्स्ट वन अगला सिस्टम है
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या क्या, पहला क्या है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, कितने तरीके हैं जिसके थ्रू कैपिटल अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड? आंसर इज नंबर 1 fixed capital account and the number 2 is fluctuating capital account. Now we'll ask you सर जी डिस्कस करिए इसको। सो मैं पहला डिस्कस कर रहा हूँ, if partners capital are fixed then you supposed to prepare 2 accounts। यदि आपको सवाल में गड़ा कर लिखा हुआ है कि कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल क्या है फिक्स्ड है, तो यू सपोज टू ओपन 2 अकाउंट्स। पहला अकाउंट क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें सिर्फ 2 ही चीजें क्रेडिट होंगी और 2 ही चीजें डेबिट होंगी। क्या है तो 2 चीजें क्रेडिट होंगी, याद रखना, इट स्टार्ट्स विद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इट स्टार्ट्स विद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यदि पार्टनर ने और कैपिटल फर्म को दी है तो बाई बैंक करके उसको क्रेडिट किया जाएगा। और फर्म ने यदि कैपिटल बिजनेस से ड्रॉ की है, क्या की है कैपिटल बिजनेस से ड्रॉ की है, जिसको कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की है, व्हाट पार्टनर हैज डन ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की है, तो इट विल बी डेबिटेड। और इसकी बैलेंसिंग कैसे की जाएगी? टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो बताएंगे व्हेनेवर कैपिटल इज फिक्स्ड हाउ मेनी अकाउंट्स आर ओपन? आंसर इज capital account and current account. Other question is whenever capital is fixed, what will show in the capital account? So my answer is only 2 things will be credited and two things will be debited. What are these 2 things? Buy balance brought down, that is called opening balance. Buy bank जो फर्दर कैपिटल पार्टनर ने फर्म को दी है, एंड टू बैंक जो फर्म से वो कैपिटल अपने घर ले गया है, एंड टू बैलेंस कैरीड डाउन। एक याद रखना एक फंडा, यदि आपने क्लास 11 के दौरान ऑब्जर्व किया है, बाई बैंक कभी भी बिजनेस में पैसा आता है, यदि ध्यान दिया हो तो बाई बैंक, क्योंकि किसी से आता है तो बाई बैंक, और किसी को पैसा दो टू मींस किसी को, तो टू बैंक विल ऑलवेज बी डेबिटेड। सो बाई बैंक किसी ने पैसा फर्म को दिया, बाई बैंक इट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, एंड यदि टू बैंक किसी को दिया तो इट विल बी डेबिटेड। अब जो बाकी चीजें हैं वो सब किस अकाउंट में जाती हैं? Rest of the informations are shown in the partners current account. Partners current account. So unlike all account, it is like all other accounts, it starts with buy balance brought down. ये बैलेंस आपको दिया होगा कि कभी-कभी बाई बैलेंस क्रेडिट होगा तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और डेबिट होगा तो आप क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यदि हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया है, क्या दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि हमने पार्टनर को सैलरी अलाउ की है तो बाय सैलरी, यदि कमीशन अलाउ किया है तो बाय कमीशन, यदि पार्टनर ने प्रॉफिट बांटा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यदि पार्टनर ने ड्राइंग्स की है तो टू ड्राइंग्स, और यदि पार्टनर पर हमने ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं लगाया है तो क्या करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यदि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, और या तो ये क्लोज होगा टू बैलेंस कैरीड डाउन पर या बाय बैलेंस कैरीड डाउन पर। तो बताइए क्या क्या 5 चीजें हैं। इट स्टार्ट्स विद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, समटाइम्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जब इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जब इसका डेबिट बैलेंस होगा। और क्या है जो चीजें क्रेडिट होती हैं? पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, इट विल बी क्रेडिटेड, पार्टनर को सैलरी और कमीशन दिया, इट विल बी डेबिटेड, पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया, इट विल बी क्रेडिटेड, और यदि पार्टनर ने ड्राइंग्स की है तो इट इज डेबिटेड, पार्टनर ने की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगाया है, इट विल आल्सो बी डेबिटेड, और हमने कोई लॉस हुआ है तो इट विल बी डेबिटेड। इफ credit side is greater than debit side, then the question will, this account will close by to balance carried down, and if debit side is greater than credit side, then by balance credit down। इसे आप बैलेंसिंग कहते हैं, और आपने 11th में बहुत लेजर्स पर से क्लोज किया है। मन में एक बात आई होगी गौर से, what is the difference between these two drawing given here and this money which has also been withdrawn? क्या अंतर है सर इस ड्राइंग में और इस ड्राइंग में? इस ड्राइंग में और इस ड्राइंग में सर जी यहाँ भी पैसा गया और यहाँ भी गया, दोनों में अंतर क्या है? याद रखिएगा, this is a drawing against capital and this is a drawing against profit. This is a drawing against capital and this is a drawing against profit. This is a drawing against capital and this is a drawing against profit. ये पार्टनर ने अपनी
कैपिटल को भी कैपिटल से पैसा बिजनेस से निकाला है और ये उसने अपने प्रॉफिट का पैसा जो उसने प्रॉफिट के तौर पर या सैलरी या इंटरेस्ट के तौर पर कमाया था, ये पैसा उसने अपने बिजनेस से निकाला है। तो क्या अंतर है? तो बताइए ड्राइंग्स कितने तरीके की हो सकती है? ड्राइंग कैन बी अगेंस्ट कैपिटल एंड कैन बी अगेंस्ट profit also. So drawing against capital is shown here and drawing against profit is shown. The next way, when capital is fixed, अब समझ लीजिएगा a few points regarding this. When capital is fixed, separate account is opened for capital and for the remaining information regarding the partner's current account are opened. Number 2, when capital is fixed, further capital introduced and capital withdrawn by the partner is shown. When capital is fixed, जो भी पार्टनर ने कैपिटल दी है या कैपिटल का पैसा बिजनेस से निकाला है, इज इट क्लियर? वो किस अकाउंट में दिखाया जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, और बाकी जो पार्टनर्स की चीजें लेना देना दे, इट विल बी शोन इन द करेंट अकाउंट। अभी भी मैंने कहा था कि यदि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो किस अकाउंट में जाएगी? कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और यदि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो किस अकाउंट में जाएगी? करंट अकाउंट में जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर point number 4, I'll cover when I'll cover a particular question. So please remember point number 8 जो उस समय आया था और point number 4 मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब आइएगा, if capital is fluctuating, please do remember two accounts will not be opened, only one account will be opened, that is called partners capital account. That is called partners capital account. Means जब capital fixed है तो two accounts are opened, that is capital and current account, and whenever capital is fluctuating only one account is prepared, that is called capital account. और याद रखना जो दोनों अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन उसको अब एक ही अकाउंट में कर दिया जाता है। जब भी कैपिटल फिक्स्ड है तो घर में दो रूम बनाए जाते हैं, एक कैपिटल के लिए और एक बाकी चीजों के लिए। बाकी चीजों के लिए जब जो रूम बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। बट व्हेनेवर कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग घर में एक ही रूम होता है और सभी चीजें जो भी पार्टनर्स को दी जाती है या ली जाती हैं वो एक ही अकाउंट्स में दिखाई जाती है ना। व्हाट इज पार्टनर्स? सो इन दिस केस क्या क्या आएगा? मैंने कहा दोनों को याद करो। क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट कैपिटल। यदि पार्टनर ने और कैपिटल दी है वो भी यही आएगी। पार्टनर को यदि इंटरेस्ट अलाउ किया गया है वो भी यही आएगा, कोई करंट अकाउंट नहीं, वो भी कैपिटल में ही आएगा। पार्टनर को सैलरी और कमीशन दिया है वो भी यही आएगा, और कोई प्रॉफिट है तो वो भी यही आएगा। पार्टनर ने यदि बिजनेस से कोई भी ड्राइंग्स किसी भी टाइप की है, it will always be debited here. Interest on drawing will also be debited here. Appropriation loss हुआ है तो it will be debited here. और आप जानते हैं credit side is greater than debit side. Question starts ends with to balance carried down, and if debit side is greater than credit side, it ends with by balance carried down. By balance carried down. So बताइएगा कैपिटल अकाउंट यदि फिक्स है, हाउ मेनी अकाउंट्स आर ओपन? नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 करंट। बताइए जब भी कैपिटल फिक्स्ड है कैपिटल में क्या क्या लिखोगे? सर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो उसकी कैपिटल है, और बाय बैंक यदि उन्होंने और कैपिटल दी है, टू बैंक उसने जो कैपिटल से पैसा निकाला जिसे आपने अभी भी कहा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और क्लोज कर देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। और करंट अकाउंट में क्या दिखाएंगे? पार्टनर को इंटरेस्ट दिया तो करंट अकाउंट में सैलरी दी, तो करंट अकाउंट में कमीशन दिया, तो करंट अकाउंट में ड्राइंग्स की, तो करंट अकाउंट में डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट अकाउंट में डेबिट। मतलब हमारी पार्टनर्स को की सारी चीजें तो अकाउंट में बढ़ जाएंगी, बट व्हेनेवर इज कैपिटल इज फिक्स्ड हम एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाएंगे और जो भी चीजें पार्टनर्स की क्रेडिट आइटम है दे बी क्रेडिटेड एंड डेबिटेड टू डेबिटेड। Whenever capital is fluctuating, only capital account will be opened. Number 2, anything allowed to partners will be credited and anything charged on the partners will be debited in capital account. Is it clear? कोई भी चीज पार्टनर्स को दी गई है लाइक इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, it will be credited, और लीड पार्टनर से लेनी है ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस, it will be debited.
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल नॉट बी शोन इन द कैपिटल अकाउंट। याद रखना, यदि पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट दिया है, क्या दिया है, लोन पर इंटरेस्ट दिया है, तो भूल कर भी कैपिटल या करंट किसी भी अकाउंट में मत लिख देना। इंटरेस्ट ऑन लोन किस अकाउंट में जाता है, लोन में। प्लीज याद करिए क्लास 11 में इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड की एंट्री आप क्या करते थे, याद करिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट की एंट्री क्या करते थे, थोड़ा सा याद हो, नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको ले जा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, क्या क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट और खर्चाजार डेबिटेड इनटू लोन अकाउंट। उस पैसे को हम उसके किस में डाल दिया करते थे, लोन में डाल दिया करते थे। सो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन को कभी भी कैपिटल अकाउंट्स में मत लिख दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्रिसाइजली फिर बोल दूं, इज इट क्लियर, फिर इसको बोल दूं कि फिर एक बार देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन इट इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब इसका डीड में जिक्र हो। यदि डीड में कोई जिक्र नहीं है तो याद रखिएगा कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। आइए इस नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और इस वर्ड को मैं पहले बता चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट होगा पूरा देंगे, कम है कम देंगे, नहीं है नहीं देंगे, नहीं है नहीं देंगे। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रॉफिट है या नहीं। लेकिन कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाता है। क्या माना जाता है, चार्ज। जब पार्टनर से इस तरीके से कहा जाता है कि मिस्टर पार्टनर, आई विल अलाउ यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ देयर इज अ लॉस इन बिजनेस। इवन इफ देयर इज अ लॉस इन बिजनेस, मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो मैं इंटरेस्ट दिया जाएगा। सो नाउ याद रखना, जाएगा, गा, मस्ट। और जब कोई चीज मस्ट हो जाती है तो वो एप्रोप्रिएशन नहीं रहती, उसे चार्ज कहते हैं। और चार्ज हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। कभी भी भूल कर उन्हें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मत लिख दीजिएगा, मत लिख दीजिएगा। आइए एक न्यूमेरिकल करने से पहले एक एंट्री करके देख लें। बताइए सर जी, ये आजकल याद रखिएगा, ये सारी एंट्रीज इफ यू लुक एट योर लास्ट 10 years पेपर यू विल सी देम कि मैं आपको यूं नहीं पढ़ा रहा हूं। ये वो जगह है जो न्यूमेरिकल को भी अफेक्ट करती है और यहीं से प्रैक्टिकल थ्योरी भी पूछी जा रही है। सो क्वेश्चन बनता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करने की जर्नल एंट्री बनाइए। पास जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। आप क्लास 11 से जानते नहीं तो आज आपके सामने है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना फर्म के लिए खर्चा है और खर्चाजार डेबिटेड, और ये कैश में ही दिए जाते हैं। इनका पैसा अकाउंट में डाला जाता है। यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये इंटरेस्ट का पैसा हमने किस अकाउंट में डाल दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और यदि फिक्स्ड है कैपिटल तो ये पैसा हम किस अकाउंट में डाल देंगे, करंट अकाउंट में। तो बताइए भाई, याद करते चलिए मेरे साथ साथ, क्या एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? आंसर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज़ ऑल खर्चास आर डेबिटेड। क्या ये पैसा कैश में? नो, इट विल बी transferred to their capital account if capital is fluctuating, and their current account and if the capital is fixed. तो क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट if capital is fluctuating and to current account if the capital is fixed. सारे अकाउंट्स खुलते भी हैं और सारे नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट खुलते भी हैं, इनका जन्म भी होता है और इनकी मृत्यु भी होती है। ये खुलते भी हैं और ये क्लोज भी होते हैं। तो क्लोज करने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अकाउंट में जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। और एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्लोज करते समय जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ था वो क्या हो गया? क्रेडिट। और किस अकाउंट में जाकर ये क्लोज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो याद करिए क्या एंट्री बनाओगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
in case of fluctuating capital in partners current account, in case of fixed capital and account close कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और जो आपने इंटरेस्ट डेबिट किया उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। यदि आप थोड़े अपने स्किल्स को यूज करें तो इसी के, यदि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट की बजाय सैलरी दें, क्या दें, सैलरी दें, तो व्हाट्सएप क्या एंट्री करेंगे, सैलरी अलाउड टू पार्टनर, तो इंटरेस्ट को हटाकर उस जगह क्या लिख दो, सैलरी। एंट्री क्या बनेगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अच्छा सर, यदि कमीशन है तो क्या एंट्री होगी, commission account debit to partners capital account in case fluctuating capital is there, or partners current account in case fixed capital is there। and सर ये close कैसे होगा, तो बताइए, profit and loss appropriation account debit to commission। अच्छा सर, पार्टनर को यदि बोनस दिया जाए तो बोनस to partner account debit to partners capital account in the case fluctuating capital is there, and in the event of the fixed capital to partners current account, and closing entry will be profit and loss appropriation account debit to bonus। so precisely पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाए, चाहे सैलरी, चाहे बोनस, चाहे कमीशन, एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट, बोनस है तो बोनस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, depending how you are maintaining this capital account। and the next entry will be profit and loss appropriation account debit to interest on capital, if interest on capital is there, if salary to salary, if commission to commission, if bonus to bonus। This is the numerical which covers interest on capital intensively। so please go through this question, read it very carefully, read what are the terms and conditions contained in the agreement, you can't avoid that, so read it very carefully and act accordingly। last year इंटरनल एग्जाम्स में, चाहे वो CMS हो, चाहे लॉरेटो कॉन्वेंट हो, और चाहे कई अदर स्कूल्स लखनऊ के रहे हों, उन्होंने इसको किसी ने पूरा पूछा तो किसी ने 2 केसेस पूछे, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछा गया क्योंकि ये बारीकी रखता है। आइए इसको करते हैं, क्या है, पहले इस सवाल को करने से पहले बार फिर हाईलाइट कर दूं, पॉइंट नंबर 1, interest will be allowed only when it is given in the partnership deed। डीड में तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 2, यदि डीड में है तो याद रखना इट इज एन एप्रोप्रिएशन, जितना होगा उतना देंगे, कम है कम देंगे, नहीं है नहीं देंगे, पूरा है पूरा देंगे। इन द लास्ट वन, कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बन जाता है, क्या बन जाता है, चार्ज, मतलब मस्ट वर्ड लगा दिया जाता है कि पार्टनर्स आपको दिया ही जाएगा, तो याद रखना फिर इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, चाहे कैसी भी बिजनेस की हालत हो। आइए नेक्स्ट सीखते हैं। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1 with a capital of 1 lakh and 50,000 respectively। X की कैपिटल क्या है, 10 lakh, and Y की कैपिटल क्या है, 50,000 respectively। Show the distribution of profit in each of the following conditions। अब आपको बताना है कि क्या होगा, कैसे होगा। सो पहला केस, इफ देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कुछ दिया ही नहीं है, जबकि प्रॉफिट कितना है, 30,000, तो क्या अभी भी दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सवाल ही नहीं है, डीड में नहीं है तो सवाल ही नहीं है, तो क्या किया जाएगा, बस भाई 30,000 को बांट दो। कैसे, देखो भाई कैसे, देखो नीचे ये अकाउंट बना हुआ है, कितना प्रॉफिट था, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज नेट प्रॉफिट, डीड में जिक्र नहीं है तो देना ही नहीं है, तो ये 30,000 को उठाकर इसमें बांट देंगे x and y में, इन व्हाट रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 20,000 and 10,000। तो बताइए पहला पॉइंट क्या हुआ, याद करते चलिएगा, ये क्वेश्चन से ज्यादा ये आपका बेस स्ट्रांग करेंगे, इधर बोल गए तो फिर चैप्टर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। केस नंबर 2,
If there is a provision for interest on capital at the rate of 10% per annum, डीड है, डीड में जिक्र है कि 10% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन बिजनेस को क्या है, लॉस। क्या रूल लगेगा, सफिशिएंट प्रॉफिट पूरा देंगे, कम प्रॉफिट कम देंगे, लॉस है नहीं देंगे, लॉस है नहीं देंगे। आइए भैया, तो इस सवाल में क्या है, लॉस, तो फिर सवाल इंटरेस्ट देने का कोई सवाल ही नहीं है। आइए लुक एट द केस नंबर 2, लुक एट द केस नंबर 2। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज profit and loss account. There is a loss of 30,000. Everybody knows that incomes are always, profits are always credited and losses are always debited. So in this question there is a loss of 30,000, loss of 30,000. इंटरेस्ट देना था लेकिन नहीं देंगे क्योंकि लॉस है। तो क्या करें सर, ये 30,000 रुपए का, इस 30,000 रुपए को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किस में बांट दूं, एक्स और वाई में, एक्स और वाई में बांट दीजिए। Case number 3. Case number 3. If there is a provision for interest on capital at the rate of 10% per annum in the partnership deed and there are profit of 30,000, मतलब sufficient profit है। डीड में इंटरेस्ट का जिक्र भी और हमारे पास प्रॉफिट भी क्या है, सफिशिएंट है। इसका मतलब इंटरेस्ट दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा तो देख लीजिएगा। केस नंबर 3। So there is a net profit of 30,000. पहले क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। एक्स की कैपिटल क्या थी, क्या पढ़ा था आपने, 1 लाख, 1 लाख का 10% इज 10,000 will be allowed to x। y की कैपिटल क्या थी, 50,000, 5,000 will be allowed to y। देखिए प्रॉफिट था, पूरा दिया कि नहीं दिया, दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। अब कितना डिविजिबल प्रॉफिट बचा, कितना बचा, 50,000, एंड ये 50,000 किस में बांट दिया जाएगा, x और y में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो प्रॉफिट पहले एप्रोप्रिएशन, फिर बचेगा तो प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट केस, लुक एट द केस नंबर 4। If there is a provision for interest on capital at the rate of 10% per annum, by deed में तो provision है कि 10% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा और x की कैपिटल 1 लाख है, so he be allowed 10,000, y की कैपिटल 50,000, he be allowed 5,000, 15,000 लेना था, लेकिन दोस्त प्रॉफिट कितना रह गया, 9,000। कितना, 9,000। तो बताइए भैया, जितनी चादर होगी उतनी ही तो पैर पसारोगे, जितनी चादर होगी उतनी ही तो पैर पसारोगे। तो क्या 15,000 इंटरेस्ट दोगे या 9,000? 9,000 देंगे। किस रेशियो का जिक्र किया था, कैपिटल रेशियो में देंगे। किस रेशियो में देंगे, कैपिटल रेशियो। इज इट क्लियर? तो बताइए, इफ पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है, इंटरेस्ट देना बनता है, लेकिन क्या करें, प्रॉफिट 9,000 है, जितनी चादर है 9,000 उतना ही इंटरेस्ट देंगे। और याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल्स क्या क्या है, 1 लाख एंड 50,000, so it will be allowed in 2:1, it will be allowed in 2:1। so look at that, look at the case number 4। what is the profit, 9,000। what is the profit there, 9,000। how much maximum interest on capital we can allow, only 9,000, only 9,000। now the question, in what ratio, in the capital ratio। what is the capital ratio, 1 lakh and 50,000, that is 2:1। so याद रखना, हमने 9,000 को किस रेशियो में बांटा है, कैपिटल रेशियो में, 2:1। so 9,000 into 2 by 3, 6,000 will go to x, 9,000 to 1 by 3, 3,000 will go to y। केस नंबर 5। अब देखिएगा, if there is a provision for interest on capital at the rate of 10% per annum in the partnership deed, if there is a loss, even if there is a loss, even if there is a loss, मतलब तब भी दिया जाएगा चाहे लॉस हो। तो बताओ, is it appropriation or it is a charge? Is it an appropriation or it is a charge? Answer is charge, it is a charge। अब बताइए प्रॉफिट कितना है, 9,000 कह दिया। चाहे मिस्टर पार्टनर्स आप चिंता न करो, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बट यू गेट द फुल अमाउंट। बताओ, इट इज मी और इट इज मस्ट, आंसर इज मस्ट। तो उसको पूरा दिया जाएगा चाहे कुछ हो।
तो which account will open? चार्जेस के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट होते हैं. हाउ मच इज द प्रॉफिट? 9000. हाउ मच इज द प्रॉफिट? 9000. x और y को 9000 के बराबर नहीं, मस्ट है तो पूरा दिया जाएगा. 1 लाख का 10%, 10,000 will be given to x. 50,000 का 10%, 5,000 will be given to y. तो बताइए 9,000 प्रॉफिट था, इनको कितना दे दिया? 15,000. रिजल्टिंग इन देयर इज अ लॉस ऑफ 6,000. There is a loss of 6,000. So 6,000 will be distributed in x and y in their profit sharing ratio. So याद रखना, कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के कम होने पर जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, इट विल ऑलवेज बी इन द कैपिटल रेशियो. और कभी भी आप बचा हुआ बैलेंसिंग प्रॉफिट और लॉस बांटोगे, इट विल ऑलवेज बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इट विल ऑलवेज बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पंडित जी, when interest on capital is to be allowed irrespective of the loss to the business, it is treated as charge and charges are shown in the profit and loss account. That is why in the fifth case profit and loss account has been prepared. God Baba month. No profit, no appropriation, less profit, less appropriation, sufficient profit, appropriation as agreed upon. As agreed. आइए अब एक पूरा सवाल करते हैं. A and B are partners in a firm sharing profit and losses increased to on 1st April 2016. Their capitals were 50,000, 40,000 respectively. So कैसे करना चाहिए? एक रजिस्टर लेके बैठिए, उसमें कहीं जगह पर सारी इंफॉर्मेशन की समरी बना लीजिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 3:2, कैपिटल्स आर 50,000 and 40,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना है? 5% के रेट से देना है. और सैलरी कितनी देनी है? एंड ए को सैलरी कितनी देनी है? 6,000 पर एनुम देनी है. और बी को कमीशन कितना देना है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट देना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया है. आपने देखिए ध्यान से प्रॉफिट कैसा दिया. कुछ लोग पढ़ते ही नहीं, उनके लिए प्रॉफिट हमेशा नेट प्रॉफिट होता है. नो, प्लीज रीड इट केयरफुली. प्रॉफिट कैसा दिया है? सो नेट प्रॉफिट रुपीस 80,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन. मतलब अभी हमने पार्टनर्स को कुछ भी नहीं दिया. और बताइए नेट प्रॉफिट होता क्या है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन देने से पहले. और ये दिया भी क्या है? इंटरेस्ट, कमीशन और सैलरी देने से पहले. इसका मतलब ये बिल्कुल सही नेट प्रॉफिट है. जिस नेट प्रॉफिट की हमें जरूरत थी वही नेट प्रॉफिट है. आइए कौन सा अकाउंट बनाएं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बताइए मैंने क्या क्या बताई थी, क्या क्या क्रेडिट होता है. और सर आपने बताया था कि दो चीजें, मैक्सिमम दो चीजें क्रेडिट होती हैं एप्रोप्रिएशन में, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अच्छा दोस्त, क्या तीन चीजें नॉर्मली डेबिट होती हैं? सर आपने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन. अच्छा तो बचता उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं. शुरू करूं? यस. तो बताइए क्या नेट प्रॉफिट प्रोसेस करना है? इट इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड. इट इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड एंड प्रॉफिट कितना दिया है? 80,000. बिल्कुल सही है. शुरुआत करें. नेट प्रॉफिट यहीं से एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है. सबसे पहले पार्टनर को क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बताइए क्या रेट था? क्या आपने नोट किया है? क्या रेट था ऊपर? बताइए किस रेट से इंटरेस्ट देना था? 5% के रेट से. 50,000 का 5% इज 2500, 40,000 का 5% इज 2000. लीजिए साहब, दे दिया. ए को कितना दे दिया? 2500. बी को कितना दे दिया? 2000. कितना दे दिया? 4500. तो नहीं देखना एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? में से 80,000 में से हमने 4500 एप्रोप्रिएट कर लिया बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब बताइए ए को और क्या देनी थी? ए को क्या देनी थी? सैलरी. इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम. अरे भाई देना था तो यार दे ही दो. तो बताइए हमने टू ए सैलरी ए को कितनी दे दी? 6,000. कितनी दे दी? 6,000. तो बताइए 80,000 में से 4500 इनको दे दिया, 6,000 इनको दे दिया. कितना दे दिया? कॉपी करके देखिए कितना दे दिया. 80,000 में से
10,500 दे दिया तो बचा कितना 69,500 69,500 80,000 में से इंटरेस्ट के तौर पर 4,500 दे दिया और 6,000 एज अ सैलरी दे दिया। नाउ द रिमेनिंग प्रॉफिट इज हाउ मच 69,500। अब बताइए बी को क्या देना था, बी को कमीशन देना था 5% किस प्रॉफिट पर, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब उस प्रॉफिट पर जो कमीशन से देने से पहले। बताइए कमीशन देने से पहले प्रॉफिट अभी भी कितना निकाला है 69,500 69,500 कैसे 80,000 में से बताइए आपने 4,500 ये दे दिया, 6,000 ये दे दिया, बिना कमीशन के बताइए 80,000 माइनस दीस टू 10,500 माइनस कर दिया तो कितना आ रहा है भैया जी, कितना आ रहा है 69,500 का कितना कमीशन 5%। तो बताइए 69,500 का 5% कैलकुलेट करिए। Calculator is already with you, so please keep the calculator with you and please confirm होते रहिए। मैं आपसे अगली बार डाउट्स पूछूंगा, so आप कंफर्म होते रहिएगा। कितना आ रहा है, that is 3,475। क्या करिए 80,000 में से इन दोनों को माइनस करिए तो आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ गया, that is 69,500 पर आप क्या कैलकुलेट करिए 5% कितना आया 3,475। तो 80,000 में से कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया, में से सैलरी दे दी, में से कमीशन दे दिया दोस्त। अब जो बचा व्हाट वी कॉल इट डिविजिबल प्रॉफिट, व्हाट वी कॉल इट डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा, ए और बी में, इन देयर अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी आपने क्वेश्चन में देखा है कि अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। तो जो ये प्रॉफिट बचा है उसको हम लोग किस रेशियो में बांट देंगे, हम लोग किस रेशियो में बांट देंगे 3:2 में। So look at the calculation, look at the calculation। Clear? Okay, so that's for today.